is the majority burden among the non-communicable diseases. 63% of total deaths in India are due to non-communicable diseases. Hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases, and it remains. TB incidence is measured to be 2.77 million in India, 27% of the global TB burden. And the most area of concern in this and ensuring the accessibility of drug-resistant TB testing. Father Patwa. Now to move the Professor Patwa, Dr. Vijay Rana, to kindly address the gap. Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, Mr. Sudhakar Yadav, Group Head Corporate Affairs, Mr. Anil Sahni, Manager Corporate Affairs, Mr. Sudhanshu Vardi, Member Tata Trust, and definitely we miss Foreman Nagori ma'am. She was expected to come, but due to some flight issues, she's late. She's a worthy trustee, Community Development Trust. So, sir, really, I'm feeling picked up in the May and June this year with an aim to address the growing health challenges posed by the both non-communicable as well as communicable, and particularly we're focused on hypertension and tuberculosis. And the Tata Power Department has responded well by enhancing the capabilities of our health department. Dr. Sanjeev Master, Managing Director, and worthy members who have graciously provided essential medical equipment to our health department. Invaluable contribution to the general public. The medical equipment will be distributed to our ASHA, accredited social activists, and ANMs. This initiative is a testament to the Tata Power commitments to social responsibility and their proactive approach to collaborating with the local governments to improve community health. Kindly address the gathering and give some introduction to the tuberculosis program in Kathua. अनुसार और जहाँ पे तशरीफ लाए हुए दूसरे ऑफिसर्स और दूसरे मुलाजमीन व मीडिया पर्सन, मैं खास कर ये ट्रू नेट मशीन के बारे में भी थैंक यू करूँगा। सर ने बहुत हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्प की है। तो ट्रू नेट का सर ये है कि हमारे जहाँ 2016 में पहली एक सीवी नेट लगी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ट्रू नेट मशीन का ये फायदा है कि हम प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस कर लेते हैं, इनका टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये MDR है या इसको TB है या है नहीं, अगर है तो MDR है या नहीं है। तो सर एट प्रेजेंट हम 20% टेस्ट कर पा रहे हैं नेट टेस्टिंग, और प्रोग्राम कह रहा है कि आप 70% करो, लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये हमारा जो ED डिस्ट्रिक्ट हैं जो सफ़र कर रहे हैं। और TB की इंसिडेंस 2025 तक जो TB एलिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव है उसमें 44 पर लाख लानी थी, लेकिन ये अभी नेशनल लेवल पे 199 है, और सर हमारे अप्रूवल में 159 है। तो मार्टेलिटी जो थी वो 3 to 425 तक लानी थी, वो अभी नेशनल लेवल पे 22 है, हमारे अप्रूवल में 6.7 है। तो सर ये जो मशीन हमारे ब्लॉक में मैं 5 मेडिकल है कि ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब जो हैं इनके अंदर जो है बैलेंस सेंटर हैं, वहाँ से सैंपल ट्रांसपोर्ट होते हैं हर महीने, हर सेंटर से 10 सैंपल। उसी तरह से जो हमें जो टारगेट दिया होता है वो 100% अभी तक सिक्योर कर रहे हैं 2024 का। तो ब्लॉक्स जो है वो ट्रू नेट मशीन से सेचुरेट हो गए हैं। इससे हम यूनिवर्सिटी टेस्ट UDS जो करते हैं MDR का वो भी डायग्नोस कर लेंगे। और सर MDR का जो डाटा है, जैसे मैडम ने बताया कि 27% वर्ल्ड के केसेज इंडिया में है, तो MDR के 29% केसेज जो है फ्रॉम इंडिया। तो 2003 और ये हमारा प्रयास है एज ए टाटा, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। और खुशी इस बात की है कि एक रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री जहाँ पे टाटा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, जहाँ पे हमने अपना कुछ प्रयास किया है, और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि संजीव सर के गाइडेंस में कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य जिसमें टाटा कर सकता है, टाटा हमेशा उपलब्ध रहेगा। Thanks again, Dr. Minhas, Sanjeev. Thank you. Sir, for being here today. I'd like to also thank to give this opportunity to Tata Power to provide this public health intervention opportunity to us. And as sir told us, संजीव सर जो आज यहाँ के हमारे मेन मुख्य अतिथि हैं और जिनकी वजह से हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा है, सुधांकर जी जो कि ग्रुप हेड हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स टाटा पावर के, अनिल जी और सुधांशु। सो सारे हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टीम हमारी यहाँ पे आई है, आज सभी सारे BMO, सारा मेडिकल स्टाफ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अत्री और मेरे मीडिया के भाई जो यहाँ पे आए। ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा क्या टाटा पावर जो हमारी मदद कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे हम क्या करना चाह रहे हैं।
हाइपरटेंशन जिसको कि नॉर्मल लोगों के लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि बीपी बढ़ता है, बीपी की बीमारी है, वो हमारे देश में 30% लोगों को बीपी की बीमारी है। जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें 30% लोग बीपी की बीमारी के शिकार हैं जिनका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। 30% को अगर हम नंबर के हिसाब से लगाएं तो इस कमरे में अगर 50 लोग बैठे हैं तो उस 50 में से तकरीबन 15 लोगों को बीपी की बीमारी है जिनको शायद पता भी नहीं है। अगर एक घर में 4 फैमिली मेंबर हैं तो उसमें से 1 या 2 को बीपी की बीमारी जरूर है। तो हमारे कठुआ में टोटल जो 5,10,000 लोग 18 साल से ऊपर की आबादी है हमारी, हमने ये संजीव सर के साथ उनका ही आइडिया से हमने डिस्कशन में इसको आगे लाया कि हम क्यों ना एक काम करें कि हम अपने सारे 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है 5,10,000 लोगों को हम एक बार स्क्रीनिंग करें कि कहीं उनका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आजकल ये बीपी की बीमारी 18 साल के बाद ही शुरू हो जाती है। वो पहले वाला टाइम अब नहीं रहा जब 40-50 साल के ऊपर एक सीनियर सिटीजन वाली एज में ऐसी बीमारियां हुआ करती थी। तो ये एफर्ट टाटा पावर ने जो हमारा पूरा सपोर्ट इसमें किया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये एफर्ट ये है कि उन्होंने हमें बीपी ऑपरेटर्स इस मात्रा में प्रोवाइड करें कि हम हर ANM आशा वर्कर अपने मेडिकल सेंटर में मेडिकल टीम्स के पास एक बीपी ऑपरेटर्स दे पाएंगे जो घर घर जाके जितने भी हमारी ऐसी पॉपुलेशन 18+ उनका एक बार बीपी का स्क्रीनिंग करेंगे, ब्लड प्रेशर। उस स्क्रीनिंग से हमारे को ये पता चलेगा कि हमारी ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जिसका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा है और उनको इलाज की ज़रूरत है। वो इलाज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग की बीपी कितना, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है या वो दवाई शुरू में नहीं चाहते हैं कि किसी के बहुत हानिकारक बीमारी है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो अनडिटेक्टेड जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो शायद ही कोई हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसपे वो, मैं डॉक्टर होने के नाते बता सकता हूँ, जिसपे वो असर नहीं डालता। आपकी किडनी से लेके आंखें, ब्रेन, हर चीज पे, ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा कारण एक राइज इन ब्लड प्रेशर है। किडनी फेलियर खराब होने का भी कारण ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रोल उसमें निभाता है। आपकी आंखों की रोशनी चले जाना, आपके रेटिना में प्रॉब्लम आना, ये सारा बीपी की बीमारी से, बीपी बढ़ने से होता है। और इलाज बहुत सिंपल है। आपको अगर पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से या एक बीपी की दवाई खाने से आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। उससे ज्यादा इलाज इसमें नहीं है। एक ओरल मेडिकेशन ही आपको खाना है जो हर हमारे हेल्थ सेंटर में उपलब्ध है। तो ये चीज हम लोग जो है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ टाटा पावर एंड संजीव सर इसको हम शुरू करेंगे करना। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर हमारे पास 2 मिनट मशीन टेस्टिंग की आई है और 2 घंटे के अंदर हम लोग ये बता पाएंगे कि टीबी आपको है या नहीं, जिसको पहले टाइम लगता था करने में, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसको भी हम लोग बता पाएंगे। इसके साथ साथ अपार ग्रुप ने हमें 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पे दिए हैं जो हम नीचे आपको अभी फ्लैग ऑफ करेंगे उनको। ये 2 एम्बुलेंसेस कठुआ के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। हम इन 2 एम्बुलेंसेस को, एक एम्बुलेंस को आज हम बनी भेजेंगे और बनी एरिया में उस एम्बुलेंस की को यूज करेंगे और दूसरी एम्बुलेंस हीरानगर एरिया में। तो ये एक स्टार्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ पे आज किए जा रहे हैं। तकरीबन 60 लाख का खर्चा टोटल ऑलरेडी कमिटमेंट है जो टाटा पावर ने और अपार ग्रुप ने यहाँ पे किया है, जो कि हमारे लिए कठुआ के सारे निवासियों की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। टाटा पावर के पूरे टीम का, संजीव सर का, आप लोग सब यहाँ पे आए हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट ये जो इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है इसको हम अच्छे से यूज करें और ये कठुआ के ओवरऑल हेल्थ केयर को बढ़ाने में इसमें योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Further 2 ideas in terms of the tuberculosis and the ambulances. So I made certain promises to you. I hope we are able to fulfill those promises. When I mean morning also, evening also, that आपने पहले नहीं बताया तो मैंने वैसे भी कोई डिस्कस किया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, और बातों बातों में डॉक्टर स्वामी से बात करके मुझसे निकल गया कि मैं यहाँ पे हूँ, जम्मू में ही हूँ। तो then they said, why don't you come for this function? But thank you Tata Trust and thank you the district team exactly mentioned कि हम remote area के लिए कुछ करवा रहे हैं। So that shows that they in the beginning thought कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। So, but then I told them that we don't believe in working without the government. किसी एक संस्था को
कोई थोड़ा बहुत दे दिया और बोलो क्या वो क्रांति कर लेंगे, वैसा होता नहीं है. When it comes to reach other institution at the village level, at the community level, there is no other institution except the government. आपका बहुत social commitment है, बहुत motivation है आप में. I have seen it, that kind of wavelength, that kind of resources to work at the grassroots level in all the villages, in all the districts, and that only government can do it because of two reasons. One is the human resource available with us. If you see Sevika, then you have the Gram Sevak, you are the Patwari, then agriculture का भी है. Then उसके ऊपर I think here also you have Sarpanch, you have Gram Panchayat members also, they are also our partners. So you have at least 10 people, and if you are able to motivate them, mobilize them, you can make the difference. So that's why I believe that whenever you work for making any difference at the community level, you have to work through the government. And in that respect, I must appreciate the Tata Trust that they close cooperation, coordination with the government. But that they can do, and that's what they do while working with the government. So they add up, they give those things to the government which the government is not able to do. So then I thought, let us take up this initiative. Of course, there are other initiatives you can think over. For example, there is another very important area of working is maternal anemia. There is a huge challenge. What can be done? Even, for example, how many of you are wearing specs?